सर आज कैमरा ठीक हो गया। हम्म। आज कैमरा ठीक हो गया। हाँ, वो कलर का कुछ किसी ने ना कलर का ऑप्शंस को इंफ्रारेड पे कर दिया था। अच्छा। तो दैट्स व्हाई इट वाज कमिंग आउट विद ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, ओके। वो हो गया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तक मैंने लास्ट टाइम बताया था ना। डायपोल, डिड आई टेल यू अबाउट डायपोल आल्सो इन द लास्ट क्लास? देखो एक बार नोट्स, नोटबुक देखो। पर डायपोल आई थिंक हमें करना था। करना था ना। हाँ ओके। जी। नंबर क्या था? व्हाट वाज द और पॉइंट? Ninth point. ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल, as you know, dipole is system of two equal and opposite charges separated by a small distance. So if the two charges, positive and negative, and the separation between them is two-way, separation is almost tending to zero for ideal dipole, and charges tending to infinity for an ideal dipole. Ideal dipole में charge infinite होना चाहिए, and the length has to be as small as possible, should tends to zero. This is a condition for ideal dipole. So question आ सकता है, what is ideal dipole? But there's a term called dipole moment, which is a vector quantity, which is product of the length of the dipole into the charge. Coulomb meter. So the unit of dipole moment is coulomb meter. It is a vector quantity, and its direction is from negative charge to positive. So dipole moment is always from negative to positive charge. Ideal dipole के लिए it will have finite value. The product would be finite, but the thing is that length is almost tending to zero, and the magnitude of charge is almost infinite. Practically, dipoles are like, if you have hydrogen molecule, HCl molecule, sorry. So hydrogen is slightly positively charged, chlorine is slightly negative charge, and this is a dipole. Because center of positive and negative charges are separated by a small distance, and that's nothing but dipole. H2O molecule is also dipole. Must have done in chemistry. This is slightly positive, and this is negative. So H2O molecule is also electric dipole. So all the materials where the center of negative and positive charge is not at the common center, they are eh, dipoles, electric dipole. Direction negative to positive. And then there would be 3 mark question, that is electric field due to electric dipole. First would be axial line. Its derivation is worth 3 marks. To derive the formula for electric dipole on its axial line, at any point on the axial line. And this is electric dipole. Distance will be always taken from the center of the dipole. Say this is x. यहाँ पे हमें electric field निकालना है. And electric field will be in this direction on axial line. At any point on the axial line, electric outside the electric dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा. ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और यहाँ पे ई एक्सियल वुड बी 2 kpx by x² - a² whole square, and direction of electric field and the dipole moment would be in the same direction. Both electric field and dipole moment are in the same direction. And if it is short dipole,
न्यूमेरिकल में इसका ध्यान रखना है, शॉर्ट डायपोल में क्या होगा, एक्स वुड बी वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द शॉर्ट डायपोल, बिकॉज ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, it will be 2 kp by x cube. That is, variation of electric field due to a short dipole is E proportional to 1 by x cube. जबकि पॉइंट चार्ज में द वेरिएशन इज 1 by x स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. That is, in a short dipole or in a dipole, electric field diminishes faster compared to the normal point charge. Normal point charge में अगर हम डिस्टेंस को डबल करें, फिर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स. अगर एक्स को डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, बिकॉज 2x का होल स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर, सो 1/4. बट इन केस ऑफ डायपोल, इफ यू डबल द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1/8. So in case of electric dipole, electric field diminishes faster. Electric field would diminish faster in electric dipole compared to a point charge. This you have to remember. And दूसरी बात, axial line में outside the dipole everywhere electric field would be in the same direction as dipole moment. इधर भी इधर भी. What about in between? In between भी तो it's axial line only. अगर if I consider this point suppose, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा अवे फ्रॉम इट, इलेक्ट्रिक नेगेटिव का किधर होगा, नेगेटिव का भी इधर ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज terminate at negative charge. So electric field due to positive charge is this direction. Electric field due to negative charge is this direction. So in between the two charges of a dipole on the axial line, electric field हमेशा dipole moment के opposite होगा. ठीक है? This could be a possible question, assertion, reason. Inside the dipole on the axial line, what is the direction of electric field? So direction of electric field is opposite to the direction of dipole moment. In between the two charges, outside it is in the same direction. लिख लेना ये. Next is equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल फाइंड समवेयर हियर. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेगेटिव का इधर होगा. एज अ रिजल्ट, इक्वेटोरियल लाइन पे एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायपोल मोमेंट. And you should remember the formula also. E equatorial will be minus kpx, because p का direction, this is vector on the p का direction and E equatorial का direction opposite है. And here you have x square plus a square to the power 3/2. And for a short dipole क्या होगा, for a short dipole E equatorial would be kp by x cube. Of course, direction is opposite. And if you divide these two, then E axial by E equatorial would be always 2. Electric field on the axial line divided by electric field on the equatorial line would be twice for a short dipole. Exact double हो जाता है वो. मगर वेक्टोरियली देखोगे तो रेशियो -2 आएगा. ठीक है? If it's along with the direction, then it will be always -2. तो will be derivation 3 mark, ये आ सकता है या ये आ सकता है, or they could be numerical or they could be conceptual. Like दो dipoles हैं, they are at an angle 90 degree like this, then what is the resulting dipole moment? जैसे कि एक dipole ये है, the other dipole is like this. There are two dipoles aligned at an angle 90 degree. Yeah, we can take a generalized case also. Suppose दो dipoles हैं and they are aligned at an angle theta.
This is negative, this is negative, this is positive. Positive Q. So what will be dipole moment? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, दोनों के डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा है. So the angle between the two is theta. So resulting dipole moment कैसे find करोगे? Using vector. The resulting dipole moment P resultant will be given by this formula. P square plus 2P into P, that is 2P square cos theta. वो theta कुछ भी हो सकता है. 2P square cos theta. And by substituting this value of theta, थीटा 90 भी दे सकते हैं, थीटा 120 भी हो सकता है, थीटा 60 भी हो सकता है. That could be any other angle also. ठीक है. So that'll be the resultant, and the resultant would be always at angle bisector. तो P resultant हमेशा दोनों के angle bisector पे आएगा, थीटा बाई 2 पे होगा ये. And they might give you direction of electric field also. They might ask you torque also on that. तो पॉसिबल क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है. यूनिट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, कूलम मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला पे आ सकता है. कूलम मीटर है तो मीटर हो जाएगा एल, कूलम हो जाएगा एटी, LAT. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, डेरिवेशन याद करना होगा. देन सर हाँ, सर 8th पॉइंट क्या था, लीड ज्वाइन क्या है, देखा नहीं मैंने. 8 पॉइंट लास्ट क्लास में जो किया था वो 8 था ना. सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 7th पॉइंट था ना. नहीं, मेरे को किसी ने बताया 8 तक हमने कर लिया, तो मैंने 9 से शुरू कर दिया. ओके सर. ठीक है, तुमने कुछ मिस नहीं किया है, हमने वहीं से शुरू किया था. ओके सर. देन टॉर्क ऑन डायपोल, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. इफ यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and then there's a dipole inside uniform electric field, then you know that torque acts on it, and the torque is given by P sine theta magnitude wise, and if in the vector form it is P cross E. तो इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है. And this torque will turn the dipole, it will rotate the dipole. As a result, work will be done on the dipole, and that work done on the dipole is stored as energy. तो एनर्जी का भी डेरिवेशन आ सकता है. सेकेंड डेरिवेशन एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल. सो इनिशियल एंगल अगर थीटा 1 है, फाइनल एंगल इज फाइनल इज थीटा 2. देन हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था एनर्जी का, इट इज माइनस पीई cos theta 2 minus cos theta 1. So this was the formula for energy stored in electric dipole, minus P cos theta 2 minus cos theta 1. So the torque acting on the dipole rotates the dipole, and if theta 2 is a theta and theta 1 is 90, initial angle suppose 90 है, and this torque rotates the dipole through an angle theta so that the final angle is theta. So theta 2 को 90 डाल दो और थीटा इनिशियल एंगल थीटा 1 90 है ना. हाँ ठीक है, तो थीटा 1 को 90 से सब्स्टिट्यूट किया तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, एंड दैट इज यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल. सो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री तो क्या होगा, टॉक 0 हो जाएगा. एनर्जी स्टोर्ड by this formula will be how much? It will be minimum because there's a negative sign.
So when theta is zero, torque is zero, net force as it is zero because uniform electric field में force zero होता है. So no translatory motion. Net force is zero because both the forces are equal and opposite. Net force zero होता है. No translatory motion. But question आ सकता है कि suppose the uniform electric field is replaced by non-uniform electric field, then what happens to the torque? What happens to the motion of the dipole? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसमें तुमने डायपोल को रखा, डायपोल इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इन दैट केस फोर्सेस की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी, उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा. दोनों, ये पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है, ये नेगेटिव पे फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है. एज अ रिजल्ट देयर विल बी नेट फोर्स एक्टिंग. ठीक है. तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर विल बी एफ नेट which is non-zero. There is torque which is non-zero. There will be translatory as well as rotational motion. लिख लेना ये. When you have non-uniform electric field, net torque भी zero होगा और net force भी non-zero होगा. मतलब translatory motion भी होगा and rotational motion भी होगा. Dipole plays inside non-uniform electric field. So non-uniform electric field में ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन दोनों हो गई. तो मैं बता रहा था यहाँ पे, लेट्स कम बैक टू दिस. व्हेन थीटा इज जीरो, टॉर्क जीरो होगा. फोर्स तो पहले से जीरो था. नाउ वी कम बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था. ठीक है. तो इस सिचुएशन में एनर्जी इज मिनिमम. द सिस्टम इज सेट टू मोस्ट स्टेबल सिस्टम. द सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल. दैट इज, अगर हम डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और रिलीज करें, इट विल ऑसिलेट एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो दिस इज कॉल्ड मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम. थीटा जब भी 0 डिग्री होगा, दिस सिचुएशन इज सेड टू बी मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्यों है? बिकॉज टॉर्क भी जीरो है और फोर्स तो पहले से ही जीरो था. इट्स सेड टू बी इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों जीरो है. स्टेबल क्यों है? बिकॉज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम. जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है, वो सिस्टम मोस्ट स्टेबल होता है. So when the dipole is aligned with the electric field, it's the most stable equilibrium. What if theta is 180? अगर dipole moment और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 180 डिग्री है, मतलब सिचुएशन इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल इधर है, मतलब दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो दोनों के बीच का एंगल, P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री है. एंड यू स्लाइटली डिस्टर्ब द डायपोल. तो अगर तुम इस डायपोल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा? ये डायपोल टर्न करेगा 180 से एंड इट विल बिकम लाइक दिस, इट विल बिकम पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर. सो दिस इज मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. उसका रीजन ये, टॉर्क तो जीरो है इसलिए इक्विलिब्रियम है, लेकिन एनर्जी इज मैक्सिमम. cos 180 is -1, so energy of the system is maximum. So since energy of the system is maximum, this kind of equilibrium is called most stable equilibrium. Unstable, sorry. This is most unstable equilibrium. ये मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है बिकॉज, इक्विलिब्रियम क्यों है? बिकॉज नेट टॉर्क नेट फोर्स जीरो है. इक्विलिब्रियम क्यों है? बिकॉज ये दोनों जीरो हो गए थे. अनस्टेबल क्यों? बिकॉज एनर्जी सिस्टम इज
मैक्सिमम। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो वो 180 डिग्री से रोटेट होके मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। जैसे कोई इंसान खड़ा हुआ है सपोज ऑन फुट, तुम थोड़ा उसको धक्का मारोगे तो थोड़ा संभल के वापस सेम पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन मान लो वो हैंड स्टैंड कर रहा है, सिर नीचे और पाँव ऊपर, तो थोड़ा सा भी उसको पुश करोगे हिल फॉल। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। एनर्जी सिस्टम मैक्सिमम होती है। तो कई बार ये आता है कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ सिस्टम डायपोल फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल और वाइस वर्सा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमने सपोज मोस्ट अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट किया सिस्टम को, मतलब इनिशियल एंगल 180 था मोस्ट अनस्टेबल, और फाइनल एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो हाँ, सर 90 डिग्री पे इनइक्विलिब्रियम होता है। 90 डिग्री पे उस इनइक्विलिब्रियम होगा बिकॉज टॉर्क मैक्सिमम होगा, टॉर्क विल बी नॉन जीरो। 90 डिग्री पे टॉर्क इज नॉन जीरो, तो वो कहलाएगा इनइक्विलिब्रियम। थीटा 90, टॉर्क विल बी मैक्सिमम पी, इनइक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, बिकॉज सिस्टम इस पोजीशन बैर ही नहीं सकता, टॉर्क उसको रोटेट करेगा। तो अगर मैक्सिमम पूछेंगे तो 90 बोलेंगे या 180 बोलेंगे? मैक्सिमम क्या पूछेंगे? मैक्सिमम, अच्छा टॉर्क अगर पूछेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 होगा, बट थीटा 90 का मतलब जब टॉर्क एंड फोर्स नॉन जीरो होते हैं उसको बोलते हैं इनइक्विलिब्रियम। मतलब सिस्टम उस पोजीशन में नहीं रहेगा ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स इज जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो। तो वो थीटा इक्वल टू 180 और थीटा जीरो पे हो सकता है इक्विलिब्रियम। उसके अलावा किसी पे भी इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा बिकॉज उसका मोशन होगा। तो दिस वाज रिगार्डिंग डायपोल। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, दोनों में, तो यू शुड नो दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज सच इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? अगर सपोज वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस एंड there's सम एरिया वेक्टर, एरिया सरफेस ये है, उसका वेक्टर ये है। फिजिक्स में एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर 3D सरफेस है, 3 डायमेंशनल, तो इट वुड बी रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। 3D अगर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वुड बी आउटवर्ड। एंड 2 डायमेंशनल सरफेस है, दोनों साइड में हो सकता है, इधर भी परपेंडिकुलर होता है, उधर भी हो सकता है। So this is uniform electric field. This angle between electric field and the area vector is theta. The flux is defined as E dot A or EA cos theta. Theta is angle between electric field and the area vector. कई बार they give you angle between surface and the electric field. तो अगर वो वाला एंगल दिया होगा तो तुम्हें फॉर्मूले में इसको चेंज 90 से चेंज करना पड़ेगा, 90 माइनस करके। तो ये वाला एंगल थीटा है, दिस एंगल इज फाई। तो अगर फाई दिया हुआ है तो यू कन्वर्ट दिस इनटू थीटा और वाइस वर्सा। थीटा प्लस फाई वुड बी 90 डिग्री। व्हाट इज फाई? एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमें न्यूमेरिकल में ये यूज करना है, फॉर्मूले में यूज करना है एंगल बिटवीन
एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फॉर्मूले में थीटा यूज हो रहा है, दैट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस एरिया वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट द सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा कितना होगा? क्वेश्चन में गिवन है दैट सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो फाई कितना हो गया? 0। तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर। जो मैंने डायग्राम बनाया इट इज तो ये चीज का ध्यान रखना while सॉल्विंग न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? सबसे पहली बात है स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, इट्स यूनिट, यूनिट यहां से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज वोल्ट मीटर। ये दोनों याद कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। न्यूमेरिकल्स में वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं वो, दिल गिव यू सम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2I माइनस 3J प्लस 7K वोल्ट पर मीटर, and area vector is been given to you, which is 4 meter square in XY plane, 4 meter square parallel to XY plane। बताना क्या आंसर आएगा? फाइंड द फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2I minus 3J plus 7K and area is 4 meter square parallel to XY plane. Tell me the answer for इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ। क्या करोगे? सर 8 है क्या? 8 कैसे होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 2I minus 3J plus 7K, ठीक है, एंड
area is along xy plane. सपोज ये x y है, ये z है. तो अगर एरिया एरिया इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, मतलब सरफेस एरिया एक्स वाई के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई ये बताओ मुझे. इसी को मैं ले लेता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन में एरिया है. The surface area is along xy plane. What will be the direction of area vector? Area vector में जो surface के perpendicular होता है, तो it will be along k cap. तो तुम्हारा area vector जो होगा, it will be 4k cap. तो जब ये 4k cap होगा, then you don't have to, 28. yes, it will be 28. Because ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, E डॉट है, तो फ्लक्स वुड बी E डॉट है. E है हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सॉरी एरिया वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है, तो I इंटू जीरो हो गया, प्लस 0 इंटू जे हो गया, प्लस 4 इंटू के गैप हो गया. तो ये बाकी सारा जीरो हो गया, तो फ्लक्स हो जाएगा 28 वोल्ट मीटर. तो थोड़ा सा ट्रिकी. आपने परपेंडिकुलर हाँ, नहीं बनाया है? क्या आपने परपेंडिकुलर नहीं बनाया है एरिया का वेक्टर? क्या नहीं बनाया? परपेंडिकुलर। हाँ, तो मैंने नहीं नहीं कहाँ बनाया परपेंडिकुलर. मैंने क्वेश्चन में दिया था दैट एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. सरफेस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. तो अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हुआ एक्स वाई के. तो अच्छा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस में हो गया. तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अगर सपोज इसी क्वेश्चन में मैंने दिया होता है एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 3k, नो इश्यू, ये तो डायरेक्टली कर लेते तुम, ई डॉट इसको यूज कर लेते. तो दिस वुड हैव बीन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ई डॉट ए से तुम्हारा फ्लक्स आ जाता. ई डॉट ए हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21. So it's a direct question. But just to increase the difficulty level, they might give you like this, that the area lies along xz plane. अगर एरिया along xz plane है, तो मतलब उसका जो वेक्टर होगा that would be along y axis. तो उस केस में a हो जाएगा 4j cap. तो हमें यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना होगा, दैट दिस थीटा इज ऑलवेज बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर न्यूमेरिकल में यू बिन गिवन दैट द एंगल इज बिटवीन सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फाई होगा. तो फाई से तुम थीटा कैसे निकालोगे? थीटा वुड बी 90 माइनस फाई. दिस इज अगर सपोज इज सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फैक्ट एरिया वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो cos 90 जीरो होता है, फ्लक्स जीरो हो गया. ऑब्वियस सी बात है, आइडियली किसी भी सरफेस की थिकनेस जीरो होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास ही नहीं करेगा. लेकिन अगर दिया हुआ दैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस केस में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है. फाई 90 हो गया, थीटा जीरो हो गया, कॉस जीरो मैक्सिमम होता है, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम लाइन विल पास. उस केस में मैक्सिमम लाइंस विल पास, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा. So this is when uniform electric field is there. But ये भी तो हो सकता है कि फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. फिर उस केस में फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? So in order to find flux, what we do is we take small area, because हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है. We take a small area dA, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, थोड़ा सा फ्लक्स निकाल लिया d phi using E dot dA, and then integrated over the entire surface and you get the total flux. So on integration you'll get the total flux. फिर phi आ जाएगा E dot dA से.
देन गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस इज एनी थ्री डायमेंशनल सरफेस which encloses some volume, because obviously बात है, when a surface is three dimensional it will be enclosing volume. है ना? So if you have a regular three-dimensional surface in form of a cube, it's a Gaussian surface. This could be a sphere, a three-dimensional surface. It could be a cylinder. All these are symmetrical three-dimensional Gaussian surfaces. If you take some irregular shape surface, it is also a Gaussian surface. So Gaussian surface is any three-dimensional imaginary surface. तो अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव अवे फ्रॉम दिस चार्ज. मतलब a net flux is coming out of the Gaussian surface. तो वो नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे? By taking some area dA, finding electric field there, then integrating to the entire surface. अब ये सरफेस थ्री डायमेंशनल है, एनक्लोज्ड है, तो फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं. The circle on the integral means that the surface is three-dimensional or enclosed surface. So if you have some positive charge inside a Gaussian surface, electric field lines will come out of it. Net flux इससे बाहर निकल रहा है. Flux is outgoing, you can say another way. लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है, और मान लो इस क्यूब के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा है, तो फील्ड लाइंस विल कम इनटू इट एंड टर्मिनेट ओवर इट. तो उस केस में नेट फ्लक्स इनकमिंग हो जाएगा अगर चार्ज नेगेटिव है. तो देन द गॉसेस लॉ, उसका स्टेटमेंट आएगा. व्हाट इज गॉसेस लॉ? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस always equals to the charge enclosed into 1 by epsilon naught if the charge is inside free space or air. तो इसका स्टेटमेंट आ सकता है 2 मार्क का, along with the formula. And this is Gauss's law for electrostatics. The circle over there on the integral signs tells us about कि जो surface है वो enclosed three-dimensional surface है. Gauss's law is not a fundamental law, it's derived from Coulomb's law only. दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट हैंड साइड में, it is due to all the charges inside और outside. ठीक है, सबकी वजह से ये. लेकिन the charge Q over here is only the enclosed charge. जो कि राइट साइड में चार्ज है वो सिर्फ एनक्लोज चार्ज है, जो कि इसके अंदर है. इसको और समझते हैं दोबारा से. मान लो कुछ चार्ज बाहर भी रखा हुआ है यहाँ पे क्यू, उस चार्ज की वजह से भी इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास करेगा. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट में, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी होगा. तो नेट फील्ड इन दोनों की वजह से यहाँ पे है. लेकिन जो राइट साइड है वहां पे सिर्फ इनसाइड वाला एनक्लोज चार्ज ही आएगा. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो आउटसाइड चार्ज है, इट नो डाउट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसका जो एंट्री फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स आउटगोइंग है. बाहर वाला जो चार्ज है उसकी वजह से कि जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं. तो for any charge which is outside the Gaussian surface, it will not contribute towards the flux. It will only contribute towards the electric field. इसलिए Gauss's law में सिर्फ वही चार्ज आता है जो कि enclosed है.
ठीक है। तो गॉसेस लॉ के 3 एप्लीकेशन हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन का डेरिवेशन आ सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, 3 marks, or could be numerical also. Electric field due to a line charge. अगर कोई लाइन चार्ज है इनफाइनाइटली लॉन्ग, उस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू टेक सम इमेजिनरी सरफेस 3 डायमेंशनल, जो कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए नेसेसरी है, यू टेक सम एरिया वेक्टर dA, so dA would be parallel to E. Similarly, 2 फ्लैट सरफेसेस हैं, यहाँ पे dA वेक्टर ऐसे होगा, इस वाली फ्लैट सरफेस पे dA इधर हो जाएगा। एज सच इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच का एंगल फ्लैट सरफेस में 90 होगा, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बिकम 0, whereas on the curved surface electric field would be parallel to the area vector, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी, दिस थीटा वुड बी 0। तो जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस में आएगा, एंड एज अ रिजल्ट व्हेन यू डिराइव दिस, वो बुकलेट में सारा डेरिवेशन है। क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद है किसी को? लाइन चार्ज की वजह से 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। So variation of electric field due to line charge is inversely proportional to distance, जो कि पॉइंट चार्ज में 1/r² होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो इसमें 1/r² क्यों नहीं होता? पॉइंट चार्ज में r² होता है ना। इसमें इसमें क्यों नहीं होता? वो जो डेरिवेशन में डिराइव है? करते, जब हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला, तो r² आता ही नहीं है, देखो। ठीक है, ओके। जब तुम गॉसेस लॉ लगाओगे, E डॉट ds और dA whatever, q इनसाइड कितना हो जाएगा? अगर इसकी लेंथ सपोज l है, तो लैम्डा एल चार्ज जगह इनसाइड। हाँ, अब इसको 2 सरफेसेस में डिवाइड किया मैंने, एक फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेसेस हैं, तो फ्लैट सरफेस में क्या हो रहा है? एंगल 90 डिग्री है, तो 0 हो जाएगा। कर्व सरफेस में क्या हो रहा है? कर्व सरफेस में एंगल इज 0। 0 डिग्री, तो विल बी cos 0, इट विल बिकम लैम्डा इनटू l, राइट? यस। ये आएगा, ठीक है। ये पूरा 0 हो गया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक लिया, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन चार्ज। सिमेट्रिक अबाउट द लाइन चार्ज सिर्फ एक सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर नहीं हो सकता था। तो हमेशा गॉसेस लॉ में हम सरफेस जो लेते हैं वो सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं, सो दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिकम इजियर फॉर अस। थीटा भी 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1ds। अभी एक चीज याद रखो कि जब भी तुम किसी भी गॉसेस लॉ में इंटीग्रेशन करोगे, तो एरिया किसका मिलेगा? एरिया हमेशा मिलेगा गॉसियन सरफेस का। अब जो कर्व सरफेस का गॉसियन सरफेस है वो कितना होगा? 2 πRl, विल बी 2 πRl, एल एल कट जाएगा। दैट्स हाउ यू गेट द रिलेशन। इसमें r² नहीं आ रहा है, तो ये रीजन था कि इसमें ठीक है r² सर, नहीं आता है। गॉट इट। फिर इस पे ग्राफ आ सकता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। देन जैसे मेरे असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यू हैव अ लाइन चार्ज, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है 1 मीटर पे, एक पॉइंट 2 मीटर पे दिया हुआ है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी। तो सिंस ए एंड बी दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा,
तो रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, 1/r के प्रोपोर्शनल है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा 2k λ/r, r इज 1, बी कितना होगा 2k λ/2, 2k2 कट गया, 2:1 आ गया, डायरेक्शन सेम है। मान लो लेकिन ए पॉइंट अगर इधर दिया होता तो फिर क्या होता, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो द रेशियो वुड बी देन -2/1। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो डेरिवेशन आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है, और कंसेप्चुअल भी आ सकता है। लाइक फाइंड द if the electric field due to a point charge so and so is this much, which is 2 times the electric field due to a line charge of this much linear charge density, find the distance, to equate them, or whatever relation has been given to us. तो पहला एप्लीकेशन था लाइन चार्ज, दूसरा था शीट ऑफ चार्ज। तो शीट ऑफ चार्ज में यू हैव इनफाइनली लार्ज शीट ऑफ चार्ज, जो कि जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शीट ऑफ चार्ज और चार्ज शीट whatever. So you have infinitely large sheet which has, suppose, charge uniformly distributed, and the charge density says sigma. Surface charge density is sigma. So if you see it from this side, तो ऐसा कुछ नजर आएगा, and it is infinitely large extending on both the sides. किसी पॉइंट P पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई करोगे? When you have a Gaussian surface, so you can take a cylinder like this. You can also take a cuboid. ठीक है, in some books you'll find a cuboid like this. उससे ही बात बन जाएगी। यहाँ पे इस बार उल्टा होगा, कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 हो जाएगा। जैसे कर्व्ड सरफेस, so एरिया वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कर्व्ड सरफेस का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो लेटरल सरफेसेस हैं, all 4 lateral surfaces में electric field and area vector would be perpendicular. But जो flat surface है उससे electric field का contribution होगा। If I take some area vector here, so electric field and the area vector both will be parallel. Similarly, positive charge electric field इधर हो गया। And remember that 3D में 3-dimensional Gaussian surface में area vector हमेशा outward होगा। In 3D, area vector is always taken as outward. So on the flat surface, electric field is parallel to, यहाँ भी theta 0 है, यहाँ भी theta 0 है। When you apply Gauss's law, curved surface का contribution 0 हो जाएगा। Curved surface में E ds cos 90, flat surface 2 हैं, E ds cos 0, Q inside by epsilon naught, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 2E एंड इंटीग्रेशन ds। अब वापस वही बात, इंटीग्रेशन हमेशा गॉसियन सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस था, ये फ्लैट सरफेस था, तो इसका कितना एरिया है, ए ले लो, इसको एस ले लो, एंड क्यू इज व्हाट, क्यू इज सिग्मा इनटू एस, एस कट जाएगा, दैट्स हाउ वी गेट द ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So this time there is no relation between the distance and the electric field. It's constant. इस बार electric field और area vector distance में कोई relation नहीं है. So if you want to plot graph of electric field due to a sheet of charge versus distance, it will remain constant. डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई शीट ऑफ चार्ज है 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इज बीन गिवन टू यू समथिंग,
and they ask you what is the electric field at distance 2 meter, will remain the same. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव शीट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अवे फ्रॉम इट ऑन बोथ द साइड, और अगर नेगेटिव शीट है इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी टुवर्ड्स इट ऑन बोथ द साइड्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करता है नेगेटिव पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाता है. ठीक है. तो एक एप्लीकेशन ये भी आ सकता है. इसमें फिर हमने ये भी किया था कि सपोज देयर टू पैरेलल शीट्स having charge densities sigma 1 and sigma 2, find electric field here, find electric field here, and find electric field here. करो ट्राई एक बार. both charge densities are positive. Tell me electric field in the region 1, region 2, region 3. बताओ. हो गया क्या आंसर आ रहा है? इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों डायरेक्शन में, इधर भी होगा. लेट इट बी इवन. इसका इधर हो जाएगा इवन. So this sheet is positive, so electric field in both the sides. And even कितना है? Sigma by 2 epsilon naught. अभी किया था हमने magnitude wise. Sigma 1 by 2 epsilon naught. And similarly इसकी वजह से भी electric field इधर भी होगा और इधर भी होगा. And this would be E2, which is sigma 2 by 2 epsilon naught. This would be
E2. This is also E2. Sigma 2 by 2 epsilon naught. तो दोनों का मैग्नीट्यूड पता लग गया, दोनों का डायरेक्शन भी पता लग गया. अब क्या हो रहा है? इन द रीजन 1 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, नो सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे इस रीजन में दोनों फील्ड ऐड हो गए. सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया. यहाँ पे दोनों माइनस हो गए. लेट्स अज्यूम दैट सिग्मा 1 इज मोर. E1 माइनस E2 हो गया ना, यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है. E1 को हमने बड़ा ले लिया, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया. इस वाले एरिया में कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस वुड बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ही आ गया. अब if you take special condition like if sigma 1 is plus sigma and sigma 2 is minus sigma, फिर क्या होगा? तो अगर वो कंडीशन डाल दोगे तो E1 जीरो हो जाएगा, मतलब आउटसाइड विल बी जीरो. बिटवीन द टू प्लेट सिग्मा एंड सिग्मा ऐड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा. तो दिस वुड बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड यहाँ भी ये जीरो हो जाएगा. So this is used in capacitor. If you have two parallel sheets having charge density sigma and minus sigma, then electric field lies only between the plates of the capacitor. इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द इलेक्ट्रिक, इनसाइड द प्लेट्स. आउटसाइड जीरो हो जाता है. So this is what happens in the case of a parallel plate capacitor. कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं सिग्मा, और डिफरेंट भी हो सकता है. क्वेश्चन करो. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 3/5 E नॉट I cap 4/5 E नॉट J cap. ठीक है. The ratio of flux reported field through the rectangular surface, लिख देता हूं मैं. The ratio of flux through the rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to YZ plane to the surface of area 0.3 meter square parallel to XZ plane is A is to B. Then
A, what is the value of A? करो. Electric field is 3 by 5 E naught I cap, 4 by 5 E naught J cap. The ratio of flux through the rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to YZ plane. और दूसरे में XZ प्लेन है. फ्लक्स फाइंड करना है. फ्लक्स का निकाल के भी रेशियो निकाल लो. ई नॉट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा. ए की वैल्यू बी के टर्म्स में आएगी. हाँ, तो ए बाई बी निकाल के यू कैन कंपेयर ना. ए बाय बी 1/2 है. सो व्हाट इज ए? A would be 1, B would be 2. Now this area is 0.2 meter square parallel to YZ plane. अगर YZ plane के parallel है मतलब वो x axis, उसका जो area vector वो किधर हो गया? Area vector would be area vector parallel to x axis हो गया. That means area vector would be 0.2 I cap. So area vector is 0.2 I cap and I cap is this much here. The flux through this would be how much? 3 by 5 E naught into the area. दूसरे केस में क्या हो रहा है? इस पैरेलल टू एग्जैक्ट प्लेन. एग्जैक्ट प्लेन का मतलब क्या हुआ? एरिया वेक्टर इज अलोंग J. वाई एक्सिस. हाँ, J J. cap. तो 0.3 J कैप हो गया ये. तो फ्लक्स कितना आएगा इस बार? फ्लक्स वुड बी, J कंपोनेंट ले लोगे इस बार. 4/5 E naught 0.3. नाउ द रेशियो this by this. तो 5 by 5 will be 3 by 5 E naught into 0.2, 4 by 5 E naught into 0.3, 5 से 5 E naught से E naught. So this is coming out to be 0.6 by 1.2. So A by B is 1/2. A is 1. A is 1, B is 2. ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? शनाया, आरव, Yes, sir. यस और आरव इलेक्ट्रिक फील्ड अब इजी लग रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी सर. इनको साथ साथ वो नोट्स में से कर लेना. यस सर. Now there's a diagram given like this. This is a square of side 12 centimeter. इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है which is 12 microcoulomb and at a height of 6 centimeter. नहीं, charge
यहाँ नहीं रखा हुआ है, चार्ज इज केप्ट ओवर देयर, 12 माइक्रोकूलम, सेंटर से 6 सेंटीमीटर अवे। The question is, what is the electric flux passing through the square? यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से स्क्वायर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes थ्रू द स्क्वायर? करो। क्या करोगे? You can't solve this question by integration. हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो व्हाट यू डू इज you complete a Gaussian surface by forming a cube of side 12 centimeter. You complete a cube of side 12 centimeter. ठीक है? तो अब क्या होगा? When you complete a cube of side 12 centimeter, then this charge would be located exactly at the center of the cube. Because उसका height तुम्हें दे रखा है 6 centimeter. क्योंकि साइड ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर दे रखा था यहाँ पे। So by symmetry, the charge is exactly at the center of the cube. By symmetry, charge is exactly at the center of the cube. तो exactly at the center of the cube है, तो फिर क्या होगा? Flux will be equally passing through all 6 faces of the cube. Gauss's law से हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। कितना होगा फ्लक्स? Q by epsilon naught. एंड थ्रू वन फेस कितना होगा? ये 6 फेस से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, तो थ्रू वन फेस वुड बी 5/6। तो आंसर वुड बी Q by 6 epsilon naught. द आंसर वुड बी Q by 6 epsilon naught. Q की वैल्यू डाल दो। Q is 12 माइक्रो कुलम। एप्सिलॉन नॉट तुम्हें मालूम ही 8.85 10 to the power -12 होता है। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अगर ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस नहीं होता तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब वही होता, Q by epsilon नॉट। लेकिन हर फेस से फ्लक्स 1/6 नहीं आता फिर उस केस में। तो इन्होंने दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब चार्ज इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विच इज द गॉसियन सरफेस। तो हर फेस से सिमेट्रिकल होने से हर फेस से फ्लक्स इक्वल पास करेगा, Q by 6 हो जाएगा। एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने और करवाया था तुम्हें क्लास में कि सपोज क्यूब है एक ऑफ साइड A, उसके एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है? व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फेस ऑफ द क्यूब? करना। There's a cube of side A
and there's a charge placed at vertex O, one of the vertices of the cube. Then what is the flux through one face of the cube? करना ट्राई. हिंट वही है, गॉसियन सरफेस बना के करो. Sir, can you repeat the question? There's a cube of side A and there is a charge Q placed at the one of the vertices, and the question is find electric flux through the shaded face of the cube. Find electric flux through the shaded face of the cube. इसमें हमने पता क्या किया था, हमने गॉसियन सरफेस बनाया था ताकि ये चार्ज Q एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस आ जाए. एक क्यूब इधर बनाओ सेम डायमेंशन का, एक क्यूब इसके पीछे सेम डायमेंशन, एक क्यूब इधर. We added 3 cubes. So now it has it's not a cube at the moment, it is a cuboid of side 2A. This side is A. Same set of 4 cubes, you place it above it. Okay? Same set of 4 cubes you place above it. इसके ऊपर भी रख दो. तो तब जाके जो क्यूब बनेगा वो 2A साइड का बन जाएगा. और this charge would be exactly at the center of that cube. फिर वो exactly इसके सेंटर पे आ जाएगा. जो बड़ा क्यूब बनेगा जिसका साइड 2A होगा उसके सेंटर पे ही आएगा. दिस इज 2A, दिस इज 2A, दिस इज 2A, दिस इज 2A. नाउ वी हैव बिग क्यूब ऑफ साइड 2A जिसके एग्जैक्टली सेंटर पे वी हैव चार्ज क्यूब. द सेम कॉन्सेप्ट, इस बड़े क्यूब में से कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं? द बिग क्यूब ऑफ एरिया, कितना होगा इसका एरिया? 6 इंटू साइड स्क्वायर. साइड इसका 2A स्क्वायर, 2A है. 6 इसका साइड 2A. सो वी हैव अ बिग क्यूब जिसका एरिया है 6 इंटू साइड स्क्वायर. हाउ मच फ्लक्स पासेस? द फ्लक्स विल बी charge enclosed by epsilon naught. The enclosed charge is Q divided by epsilon naught. तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका? 24A स्क्वायर. 24A स्क्वायर से फ्लक्स कितना पास कर रहा है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. हमें कितने एरिया से निकालना है फ्लक्स? हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू एरिया A स्क्वायर. तो A स्क्वायर से कितना पास करेगा? Q बाय 24 by epsilon naught. So that is the flux passing through the surface.
ठीक है। Then another application is electric field due to conducting shell. See, if you give charge to a solid conductor, then the charge always come on the outer surface. So as such, rho volume charge density is meaningless for a solid conductor. Rho has a meaning only for insulating sphere. So this is a shell of radius r जिसको मैंने यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है. चार्ज दिया तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा. Because conductor is by nature conducting होता है, तो charge, the moment you place a charge on one point, it will spread throughout the conducting shell uniformly. Then you apply Gauss's law at a point inside. You take some point P inside, take a Gaussian surface, electric field, area vector, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, बट चार्ज एनक्लोज 0 हो जाएगा. सो व्हेन यू अप्लाई गॉसेस लॉ, इसको ds ले लो, चार्ज एनक्लोज वुड बी 0, एरिया कैन नॉट बी 0, so electric field is 0. So whenever you have a charge, whenever you charge conductor, electric field inside the conductor हमेशा 0 होगा. ये तो शेल है. अगर इरेगुलर शेप का कंडक्टर भी होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड होगा, हॉलो होगा, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0. इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. आउटसाइड अगर पॉइंट होगा, अगेन यू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, उस डिस्टेंस को r ले लो. यहाँ पे सरफेस एरिया ds, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड. गॉसेस लॉ अप्लाई करोगे, so will be E dot ds is equal to q inside by epsilon naught. So this would be E ds cos 0. चार्ज एनक्लोज, जो भी चार्ज इस सरफेस पे हो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज्ड ही है. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कर लोगे ds के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा s. नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि जो s है वो किसका एरिया है. इज इट द एरिया ऑफ द कंडक्टर और इट इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. तो हमेशा याद रखना, दिस इज ऑलवेज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. But ds is this. So when you integrate this, it will be the area of the Gaussian surface. ये Gaussian surface, imaginary surface. So Gaussian surface का एरिया कितना है? 4 pi small r square. That's how you find electric field due to a point conducting sphere. Q by 4 pi epsilon naught r square, or E is equal to kq by r square, as if the charge is placed at one point which is center of the sphere. The way formula हो गया, as if the charge is placed at the center of the sphere. So electric field due to conducting shell is as if the entire charge is placed at the center of the shell. Distance हमें center से measure होंगी. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन. इनसाइड हमेशा 0 होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा और फिर स्टार्ट डिक्रीजिंग. ग्राफ भी आ सकता है इस पे. This is distance, this is r equal to r, this is when r is less than capital R, and this is when r is more than capital R.
This is electric field on the y-axis. तो electric field is zero inside the, यहाँ तक zero होगा ये, inside zero होता है. But the moment you reach at the surface, electric field would be maximum, which is kq by capital R square. उसका decrease करेगा. यहाँ पे E is proportional to 1 by R square. So electric field due to a conducting shell is like this. अगर conducting की जगह solid shell भी होगा तब भी electric field यही होगा. Conducting shell की जगह hollow की जगह solid conductor होगा तब भी the field would be like this only. Conducting ये हम बात कर रहे हैं. Insulating तुम्हारे कोर्स में नहीं है, but if you want to know, insulating sphere में we can have rho also. We can, like some insulating material rubber, उसका तुम उसमें charge mix कर दो, इसकी ball बना दो. So electric field increases directly proportional, maximum at the surface, and decreases. But this is not in your course. This is when you have rho. This is insulating. Solid sphere. And the charge is distributed over the volume. अगर charge over the volume distributed है तो फिर ये होता है. Electric field center में फिर भी zero ही होता है. Inside the sphere, it is directly proportional to R. Outside, it decreases. Inside proportional to R and outside proportional to 1 by R square. JEE में भी नहीं आएगा ये, IIT एडवांस में आएगा लेकिन उसमें इंक्लूडेड है. तो अगला टेस्ट तुम्हारा होगा, इस टेस्ट में मार्क्स मिल जाएंगे वेडनेसडे को. नेक्स्ट टेस्ट कब रखना है रे ऑप्टिक्स का? वेडनेसडे. या फ्राइडे? बताओ जल्दी से. Friday, Friday. Friday. Coming Friday, you have the test on ray optics. Wednesday, I'll give the mark on wave optics as well. ठीक है? तो Okay, sir. right, ending the class. Next class में और आगे करेंगे questions. Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye.